So this is the 13th session on Newton's laws of motion. Okay, ये 12th वीडियो के कंटिन्यूशन में है. In this video I'll take up a numerical problem on Newton's second law of motion based on the concept of applying Newton's second law in some rotating non-inertial reference frame. Okay, so in case you are new to this concept, then you must first watch the previous two videos and then you must come to this video. Okay, fine. So what I'll do is first I'll write down the working formula. Okay, so the working formula is this. Suppose I is some inertial frame or reference, n is some rotating non-inertial reference frame. Its angular velocity with respect to I at certain instant is omega. Its angular acceleration beta, and angular acceleration of n with respect to I is beta at a given instant. A is some location of n. Okay, P is a moving point. M is the mass of point P. Okay, and A to P is the vector RPA. Then if you apply the Newton's second law equation to this particle as seen from n, from location A of n, then we get this equation. F times m times APN. APN meaning acceleration of P with respect to n. Okay, fine. That is equal to F real. F real is the vector sum of all the real forces acting on the particle P. Plus there will be 4 additional pseudo forces. First pseudo force is this. Minus MAI, first pseudo force. Second pseudo force is minus M beta cross RPA. And the third pseudo force is minus 2M omega cross VPN. This is the third pseudo force, also called the Coriolis force. And the last pseudo force is minus M omega cross RPA. Alright, this is the working formula. Fine, alright. So this is the working formula. This is the first pseudo force, FPS1. This is the second pseudo force, FPS2. This is the third pseudo force, FPS3. This is the fourth pseudo force, FPS4. Okay, this is all the centrifugal force. Alright, fine. So this will be the working formula. Alright. So now what I do, first I'll write down the question, okay, and then I'll solve it by different methods, but for different choice of point A. So the problem is this. Problem is this, see. This is the vertical XY plane, okay. ये vertical XY plane है. This is the origin of the coordinate system. ये जो coordinate system है वो ground में fixed है. It is fixed in ground. X axis is rightward, Y axis is vertically upward. XY plane is the vertical plane. This is a rigid rotating rod, okay. Length of the rod is 10 meters. Its left end A1 is fixed at origin of the coordinate system. And the right end of the rod is point A2. Length of the rod is 10 meters. And this rod rotates with respect to ground. At the given instance, its angular velocity omega and angular acceleration beta both have the anti-clockwise sense. Also, vector omega is given to be 2 radian per second. Angular acceleration beta of the rod with respect to ground is 3 radian per second square. Both these are with respect to ground, okay. And there is a slider here. Mass of the slider is M is equal to 4 kg. 4 kg is the mass of slider, okay.
and at the given instant the slider is at a distance of 8 meter from its left end A1, which is fixed at origin of the coordinate system. Fine. And at the given instant the slider has a velocity of 6 meter per second with respect to rod, right, in rightward direction, that is along positive x-axis. So 6 meter per second is the velocity of slider with respect to rod at the given instant. It is with respect to the rod. Okay, fine. And the acceleration of slider with respect to ground is also, so it's also say 2 meter per second square with respect to rod, that is in rightward direction. Alright, so this data I have given fully. A2 is the right end of the rod, A1 is the left end of the rod, A3 is the middle point of the rod. Okay, so this distance is simply 5 meters. And here there is a point A4, its coordinates are given to be 3, 4. A4 is an imaginary location of the rod frame. Okay, it doesn't lie on the, it is not the metallic material point of the rod, it is a imaginary location of the rod. Okay, it's rigidly connected to the rod. Okay, fine. Okay, now this rod is given to be a rough rod is rough. Okay, G we have to take as 10 meter per second square. Question is, we have to find the coefficient of kinetic friction between the ring and the rod, mu k. Mu k is the unknown question to be determined. Okay, kinetic friction coefficient between the ring and the rod, this we have to determine. Alright, we have to determine the kinetic friction coefficient between the ring and the rod. Fine. Alright, so this is the complete data. I have written it here. Working formula also I have written it here. Okay, so now first of all we must note that this rod is rotating with respect to ground, and for all practical purposes ground is the inertial frame of reference, and rod is rotating with respect to inertial frame ground. So this rod is a rotating non-inertial reference frame. Okay, now what we must do, see, this much idea you must have about friction, that when this slider slides on this rough rod, this rod exerts a kinetic friction on the slider in direction opposite to relative slip, that is in this leftward direction. N is the normal force on the slider due to the rod. Then the coefficient of kinetic friction is given as Fk by N. What is Fk? Fk is the kinetic friction between on the ring due to the rod. And what is N? N is the normal force on the slider due to the ring or due to the rod. Okay. So if you are able to determine Fk and N, then you will get the value of mu k. Alright. If you are able to determine Fk and N, we get the value of mu k. Then we get the value of mu k. Fine. Alright. So our aim is to determine Fk and N. Now to determine Fk and N, we have two different approaches. Either we solve the problem as seen from inertial frame, that is ground frame, or we solve the problem as seen from this rod frame. So I'll solve this problem as seen from the rod frame. Okay. Also, when we solve the problem from rod frame, since rod is a rotating non-inertial reference frame, so we have to first we have to tell that what is the location, choice of location capital A within N. Okay. So in this case, first I'll say instead of inertial frame we have the ground frame. Instead of non-inertial frame NIRF, we have the rod frame, which is denoted by R say. Okay. So since rod is a rotating non-inertial reference frame, to solve this problem we have to first determine the choice of capital A within N. Capital A can be any location of this rod frame, real or imaginary both, any one of them. Okay. So for different choice of point A, we'll solve the given problem. Fine. We'll solve the problem for the given choice, different choice of point capital A. Alright. For different choice of point capital A, we'll solve the given question. Alright. Fine. So see. So what we do, first what we'll take point A1 to be point A. Next we'll take A3 to be point A2. Sorry, no, okay, fine. We'll take
A2 to be the point A. Then we'll take A3 to be point A. And then we take A4 to be point A. Okay, fine. और 4 different choices of point A will solve the problem. और हर प्रॉब्लम से हमको म्यू के का सेम वैल्यू आना चाहिए, है ना। हर केस में म्यू के का हमको सेम वैल्यू मिलना चाहिए, हर केस में, ठीक है। अब जरा इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग A1 को A लेके बनाएंगे इसको, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या कि पहले रिंग का फ्री बॉडी बनाएंगे रॉड के फ्रेम में A1 को पॉइंट ए मान के। तो सारा उसको जो फ्री बॉडी बनाएंगे रिंग का रॉड के फ्रेम में, तो रियल और सूडो फोर्सेस सब दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिंग को न्यूटन सेकंड लगा देंगे रॉड के फ्रेम में, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। उससे हमको एफ के और म्यू के आ जाएगा, एफ के और एन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे म्यू के मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। तो चलिए सब डिटेल इसमें गिवन है, जिसको मिटाएंगे नहीं, रहने देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब इसमें पहले हम इसका फ्री बॉडी बनाते हैं रिंग का, एफ बी डी ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड फ्रेम, ठीक है। E1 को कैपिटल ए मानेंगे। तो रिंग को क्या क्या फोर्सेस इसको दिखाते हैं, देखिए रियल फोर्स हो जाएगा। मास ऑफ रिंग कितना बोले हैं, 4 kg। वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जी को 10 लेने बोला है, तो 40 न्यूटन का वेट हो गया इसका रियल फोर्स, ठीक है। अच्छा, इस पर अब ये जो रिंग रॉड है, रिंग को नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा n, ये वाला n न्यूटन है, ये वाला n नॉर्मल फोर्स है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, रॉड पे रिंग उधर स्लाइड कर रहा है, रफ रॉड है, तो रॉड जो है रिंग पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन रिलेटिव स्लिप, दैट इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा एफ के ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्लिप, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब जब 1 बाय 1 करके सूडो फोर्स इवेल्युएट करेंगे, तो फर्स्ट सूडो फोर्स ये वाला होगा, इसको इवेल्युएट करते हैं। एक की जगह मेरा पॉइंट A1 है, तो फर्स्ट सूडो फोर्स जो होगा FPS1 माइनस m टाइम्स A1G, ये हो जाएगा। बट A1 देखिए रॉड का लोकेशन है, ग्राउंड में परमानेंटली फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, दिस टर्म इज 0, ये पूरा टर्म वैनिश कर गया, तो फर्स्ट सूडो फोर्स बिकम 0, तो फर्स्ट सूडो फोर्स गया, ठीक है ना, तो 0 हो गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड सूडो फोर्स निकालेंगे, FPS2, सेकंड सूडो फोर्स होगा माइनस n बीटा क्रॉस RPA1, ये हो जाएगा। अच्छा, बीटा इसमें क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ओके। इसमें कोई वेक्टर बीटा चाहिए होगा, देखिए वेक्टर बीटा। अब बीटा देखिए, बीटा का मैग्नीट्यूड कितना, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, राइट हैंड थंब रूल से बीटा का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग। सो इसको हम कहीं लिख देते हैं, देखिए वेक्टर बीटा को लिखेंगे, वेक्टर बीटा रिटन एज व्हाट, बीटा रिटन एज 3k हैट। सो FPS2 के वैल्यूएशन करते हैं, माइनस m कितना मास है 4, वेक्टर बीटा कितना है 3k हैट, RPA1 कहाँ से कहाँ होगा, A1 से स्लाइडर तक। अब A1 से स्लाइडर तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, देखिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, RPA1 हो जाएगा 8i क्रॉस 8i हैट, ठीक है। 8 3 से 24 इंटू 4 96, 96 k हैट क्रॉस i हैट j हैट हो जाएगा। इन सेकंड सूडो फोर्स माइनस 96 j है, इन 96 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसको एफबीडी में दिखाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, 96 न्यूटन आ गया, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखेंगे थर्ड सूडो फोर्स FPS3, जो कॉर्लिस फोर्स है, जिसको लिखेंगे माइनस 2m ओमेगा क्रॉस VPN, n के बदले आग लिखेंगे। अब मान ली कॉर्लिस फोर्स है, m आपका कितना है 4 kg है। अब ओमेगा देखिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है,
ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है? ओमेगा का वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा z एक्सिस के लॉन्ग 2k हैट। तो ये हो जाएगा कितना? 2k हैट हो गया। VPR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड। 6 मीटर पर सेकेंड इन राइटवर्ड डायरेक्शन है, तो 6 i हैट होगा। 6 i हैट x एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, 24 इंटू 96 माइनस 96 जे हैट, के हैट प्लस आई हैट जे हैट न्यूटन। 96 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 96 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना? फाइन, ऑलराइट, क्लियर। तो थर्ड सूडो फोर्स भी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ सूडो फोर्स, FPS4 निकालेंगे। FPS4 वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको निकालने का इजी फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसको लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r e हैट। इसमें देखिए r क्या जानना होगा पहले, ओमेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। तो लाइन एल कौन सा होगा? लाइन एल जो होगा A1 से पास करेगा, वेक्टर ओमेगा के पैरेलल होगा, ये मेरा z एक्सिस में लाइन एल है। रिंग से हम स्लाइडर से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे इस पर, रिंग पर स्लाइडर से ड्रॉप करेंगे इस पेन पर। ये फीट ऑफ नॉर्मल P' हो गया, जो कि ऑरिजिन हो गया। तो R जो होगा यहाँ से अगर डिस्टेंस होगा, जो कि हो जाएगा कितना? 8 मीटर होगा। तो यही 8 मीटर हो गया R आपका, और ओमेगा आपका सब है ये पता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? M को मास हो जाएगा कितना? 4 kg। ओमेगा कितना है? 2 है, तो 2 स्क्वायर। R कितना है? यहाँ से अगर डिस्टेंस है जो कि कितना होगा? 8 मीटर होगा। और E हेड क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम O टू द स्लाइडर, जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है। 8 i हेड हो जाएगा, हो जाएगा 4 4 का कितना हो जाएगा? 16 गुने 8 कितना होगा? 128 न्यूटन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 4 4 सूडो फोर्स है, इसको इसमें दिखा देंगे। ये देखिए, तो स्लाइडर का फ्री बॉडी बनकर तैयार हो गया है, ठीक है ना? स्लाइडर का जो फ्री बॉडी है वो रेडी है, क्लियर है एकदम। एफ के हो गया, 128 हो गया, एन हो गया, 96 40 हो गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है ना? एक बार जैसे हम कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ओमेगा कितना है इसमें? 2 है, ठीक है। VPR कितना है? 6 है, ठीक है। 6 4 हो गया आपका 24 48 2 96, ठीक है, चलिए वेरी गुड। एंड माइनस 96 जे हैट न्यूटन हो गया, ठीक है। और जो सेकंड सूडो फोर्स निकाले थे, एम बीटा क्रॉस RPA 4 इंटू 3 12 इंटू, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए सारा बन गया फ्री बॉडी, इसका फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, हो गया ना? फ्री बॉडी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अब क्या करेंगे? स्लाइडर को न्यूटन को लगाएंगे रॉड के फ्रेम में, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? ऊपर मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला तो हम लिख चुके हैं रेफरेंस के लिए। तो क्या करेंगे? स्लाइडर को न्यूटन और रॉड के फ्रेम में लगाते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? ये सब तो राइट एंगल पर है, कोई कंपोनेंट होगा नहीं, खाली इन दोनों का होगा। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? न्यूटन लॉ राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 128 माइनस क्या? एफ के इज इक्वल्स टू मास ऑफ द स्लाइडर into acceleration of slider with respect to rod APR along x direction, that is x component of acceleration. यानी 128 माइनस FK, n कितना है? 4 kg है। APR x क्या है? acceleration of slider with respect to rod in x direction, जो कि 6 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो 4 इंटू 2 हो गया 128 माइनस 8, 120 न्यूटन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, हमको नॉर्मल फोर्स एन निकालना है, ठीक है ना? नॉर्मल फोर्स कैसे निकलेगा? अब स्लाइडर को न्यूटन से लगाते हैं रॉड के फ्रेम में अपवर्ड वाई डायरेक्शन में,
इसमें पॉजिटिव इस डायरेक्शन लगा रहे थे, एफ डैश में एन आएगा, एफ डैश तो पूरा बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो एन माइनस 96 ऑफ 96 192 प्लस 40 232 माइनस 232 m times APRY. APRY meaning what? Y component of acceleration of the ring with respect to rod. Y component of acceleration of ring with respect to the rod APRY हो गया। बट देखिए रॉड के फ्रेम में रिंग का एक्सेलरेशन x के लॉन्ग है, तो उसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन होगा 6 cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री जीरो होता है, इसलिए ए टाइम्स APRY मेरा जीरो हो गया, राइट साइड मेरा जीरो हो गया। ये नॉर्मल फोर्स जो होगा 232 न्यूटन्स होगा, हो गया। अब मेरा म्यू के कितना हो गया, एफ के बैन हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो होगा 120/232 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 4 से कट जाएगा, 4 हो गया आपका 58 हो गया, यानी 15/29 हो गया, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, क्लियर हो गया। ए म्यू के इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ जो हम लोग ला चुके हैं, क्लियर हो गया एकदम। मेथड में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया आप लोग को, क्लियर हो गया एकदम, डाउट नहीं है, फाइन। वो ठीक से गो थ्रू कीजिए, ठीक है। चलिए, तो म्यू के का वैल्यू कितना आ गया, 15/29, ये म्यू के का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 को ए मान के बनाएंगे, उसके बाद A2 को, फिर A4 को। तो A1 को ए मान के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, क्लियर है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोग A3 को ए मान के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये पहले A2 को मान के बताते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे A2 को ए मान के, ठीक है। फिर से वही आंसर आना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा का लिख देते हैं, फैक्टर फॉर्म बार बार यूज होगा। ओमेगा भी उन्होंने डिटरमिन किया कितना था, 2k हेड था। और बीटा कितना था, बीटा था आपका 3k हेड। चलिए A2 को एमान पे सॉल्व करेंगे। A2 राइट हैंड ऑफ रॉड है, मटेरियल पॉइंट है रॉड का राइट हैंड। फिर से उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। रिंग का, स्लाइडर का, रिंग या स्लाइडर जो बोलिए, रॉड के फ्रेम में। तो पहले हम क्या करेंगे, रिंग का फ्री बॉडी बनाएंगे, तो रियल फोर्स सूडो फोर्स सब दिखाएंगे। तो पहला रियल फोर्स तो वेट हो जाएगा, वेट 4 kg है, मास 4 kg है, तो वेट 4 × G10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी 40 न्यूटन। एक नॉर्मल फोर्स एन लगेगा ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लगेगा पीछे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इसमें और हमको सूडो फोर्स दिखाना होगा 1 बाय 1 करके। हम A2 को ये माना है राइट हैंड को, तो पहले हमको सारा सूडो फोर्स 1 बाय 1 इवेल्युएट करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। FPS1 माइनस m टाइम्स AA2I, ये देखिए, ये फर्स्ट सूडो फोर्स है। यहाँ I मीन्स क्या, I मीन्स ग्राउंड फ्रेम AA2G, ठीक है ना। अब देखिए, ये सूडो फोर्स जानने के लिए AA2G जानना होगा। AA2G क्या मीन करता है, एक्सेलरेशन ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले हमको A2 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन जानना होगा, तब जाके हमको FPS1 इवैल्यूएट होगा। अब एक चीज देख लीजिए, ग्राउंड फ्रेम में A2 जो है इट्स मूविंग इन अ सर्कल, जिसका सेंटर O पर है, रेडियस उसका कितना है, 10 मीटर रेडियस है। 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रॉड लेंथ 10 मीटर है। A2 इज मूविंग इन अ सर्कल, उसका लेंथ रेडियस कितना है, 10 मीटर उसका रेडियस है। हम जानते हैं जब एक कोई पॉइंट सर्कल में जाता है उसका दो एक्सेलरेशन होता है, टुवर्ड सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर, और आर बीटा अलोंग टेंजेंट। C2 का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, उसके देखिए यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड O हो गया, ये A2 हो गया। A2 इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, जिसका ओरिजिन ऊपर है, सेंटर ऊपर है। इसका एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स O होगा। ओमेगा कितना है 2, तो 2 स्क्वायर 4 × ये 10 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन।
अच्छा A2 का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है, A2 का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कुछ इधर होगा, टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस A2 दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, आर बीटा। अब आर कितना है, आर आपका हो गया 8 मीटर, यहाँ से है 10 मीटर, 10 मीटर, और बीटा कितना 3 है तो 30, ठीक है। A2 का एक्सेलेरेशन दोनों का फैक्टर सम हो जाएगा, A2G को क्या लिखेंगे 30J हैट माइनस प्लस 40 टाइम्स माइनस आई हैट, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, वो वाई एक्सिस की तरफ है, A2G आ गया। इसे सूडो फोर्स से माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम कितना दिया हुआ है, एम इज गिवन टू 4 kg, ये लिखेंगे माइनस 40 आई हैट प्लस 30 जे हैट हो जाएगा 160 आई हैट माइनस 120 जे हैट न्यूटन। इसका दो कंपोनेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 160 है तो 160 दिखा दिए, देखिए, और इसका एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है 120 इंटू माइनस जे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 120 दिखा दिए, अलग से माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। यहाँ जाके आपको हम फर्स्ट सूडो फोर्स का एवल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और हम लोग दूसरा सूडो फोर्स निकालेंगे, FPS2 माइनस एम बीटा क्रॉस RPA2, ठीक है। बीटा हम लोग डिटरमिन कर चुके हैं, 3K हैट देखिए लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 3K हैट क्रॉस RPA2, RPA2 कहाँ से कहाँ वेक्टर है, A2 से रिंग तक। अब देखिए ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2 मीटर होगा, और एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, RPA2 होगा 2 टाइम्स माइनस आई, ये देखिए जो मास से मल्टीप्लाई भी होगा, सॉरी एम कितना है 4 kg है, ये कितना हो 2 माइनस में प्लस हो गया, के हैट प्लस आई हैट जे हैट हो गया, 3 2 6 2 24 जे हैट न्यूटन हो गया इसका सेकेंड सूडो फोर्स, देख सकते हैं क्लियर है, देखिए, ठीक है। तो 24 अपवर्ड डायरेक्शन दिखा देंगे, तो सेकंड सूडो फोर्स का एवोल्यूशन भी हो गया। अब जो हम लोग थर्ड सूडो फोर्स इवैल्यूएट करेंगे, थर्ड सूडो फोर्स कॉर्डियस फोर्स है, वो तो वही रहेगा जो A1 को A मान के बनाया था, क्या उसको ए से को मतलब तो लेने देना है नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन, -2m ओमेगा क्रॉस VPM मीनिंग VPR, R फॉर रॉड, ओके, P फॉर रिंग, -2m कितना है 4 kg, ओमेगा कितना है 2K हैट है, VPR कितना दिया है, VPR 6 आई हैट है, 12 24 -96 J हैट, मीन्स 96 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन 96 दिखा दिए। और लास्ट सूडो फोर्स है FPS4, that is just the centrifugal force, m omega square r e naught hat, e hat e naught hat, इसमें r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A2 एंड रिंग, और उसका डायरेक्शन e hat कहाँ है, A2 से P इस डायरेक्शन में, e hat यूनिट वेक्टर है, जिसे हम डिस्कस किए थे लाइनल कंसेप्ट, 12th वीडियो में जाइएगा तो उसका डिटेल मिल जाएगा सारा, क्लियर है ना, क्या बोले। तो कितना लिखाएगा, m हो गया मेरा कितना, m हो जाएगा 4 kg, ओमेगा कितना है 2 है तो 2 स्क्वायर, रेडियस r के कौन सा डिस्टेंस है A2 से P का, अब ये 10 है 8 है तो 2 मीटर होगा, e हैट माइनस आई हैट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 32 न्यूटन, 32 आई हैट न्यूटन हो जाएगा, देखिए फोर्थ सूडो फोर्स -32 आई हैट न्यूटन होगा फोर्थ सूडो फोर्स, ये -32 नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, देखिए हो गया, सारा फ्री बॉडी बन गया इसका रॉड के फ्रेम में। अब फिर से क्या करेंगे, रिंग को न्यूटन से लगाएंगे किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, उसके बाद हमको एफ के और एन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमको म्यू के मिल जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं न्यूटन लॉ, इसमें एक्स ये सब राइट एंगल कंपोनेंट में फोर्सेस नहीं आएगा, राइट एंगल कंपोनेंट 0 होता है, इधर क्या लिखेंगे 160 माइनस एफ के माइनस व्हाट 32
बराबर बराबर इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर है ना ये? 160 minus 32 minus what? Fk is equals to mass times acceleration. Mass times acceleration. Okay. तो मास हो गया कितना? 4 kg हो गया, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन कितना है? 2 है। दैट मीनिंग एफ के कितना हो जाएगा? 160 minus 32 128 minus 8 यानी 120 न्यूटन आ जाएगा एफ के का वैल्यू, वही आया जो पहले आया था। अच्छा, वेन निकालना है, एन नॉर्मल फोर्सेस पर स्लाइडर पर रॉड की वजह से, उसके न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन प्लस क्या? 24 माइनस ये तीनों का सम माइनस 120 प्लस 40 प्लस 96 मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू रॉड इन y डायरेक्शन, बट ये क्वांटिटी जीरो है, राइट साइड जीरो हो गया। n कितना हो जाएगा? 120 40 160 और देन 256 से 24 घटाएंगे तो कितना होगा? 232 न्यूटन होगा। बोलिए, हो गया ना? आ गया। तो नॉर्मल जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा कितना होगा? एफ के बाई एन हो जाएगा। अब एफ के कितना आया? 120 आया बाई 232 आया, वही आगे जो आया था। आंसर 15/29 आंसर हो जाएगा। आंसर इज 15/29। आंसर हो जाएगा 15 बाई क्या? 29। यही आपका म्यू के का वैल्यू हो जाएगा 15/29। 15/29 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ म्यू के। 15/29 हो गया। क्लियर हो गया? तो वही आंसर आ गया फिर से। क्लियर है एकदम? इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है? देखिए, आगे जाने से पहले एक बात हम बता देते हैं क्लियरली कि जब जैसे इस बात को हम स्टेट कर दे रहे हैं, जस्ट मैंने फिर से स्टेट कर रहे हैं ताकि डाउट नहीं रहे। उन्हें आई कोई इनर्शियल फ्रेम है, एन कोई रोटेटिंग NIRF है। एन जो है उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है आई के रेस्पेक्ट में। एन मान लीजिए इट्स अ रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एन जो है सो आई के रेस्पेक्ट में प्लेन रोटेशन हो रहा है, प्लेन मोशन। और पी कोई पॉइंट है, ए कोई दूसरा पॉइंट है, ए टू पी वेक्टर आर पी ए है, और ए और पी सेम बेस प्लेन में है। मैंने दो एजम्पशन लगाया। एन जो है सो एन अंडरगोज इट्स अंडरगोइंग प्लेन रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू आई। undergoing plane rotation with respect to I, हाँ, and undergoing plane rotation with respect to what? I. और A and P same base plane में, they are in the same base plane, दोनों same base plane situated है। इस केस में A से देखने में P पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फोर्स सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और उसका इसमें r जो है जस्ट RPA है, just the distance between A and P and away from point A, like this। समझ गए? ए से देखें P पर जो सूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर RPA होगा, एंड अवे फ्रॉम पॉइंट ए होगा, ए से पॉइंट ए, अवे फ्रॉम पॉइंट ए। ये रूल यूज करेंगे हम लोग। अभी जो यूज किए ना, अभी A1 और A2 को ए मान के जो सॉल्व किए, ये रूल अप्लाई किए थे, लाइनल कंसेप्ट जो बताए थे, तो इसका फाइनल रिजल्ट हम बता दिए आपको। समझ गए ना? बार बार लाइन लाने की जरूरत नहीं है। ए और पी सेम बेस प्लेन में है। ए से देख रहे हैं पी को, ये जो है इनका एक रियल इमेजिनरी लोकेशन है। ए से देख रहे हैं पी पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यानी फोर्स सूडो फोर्स, वो m ओमेगा स्क्वायर RPA होगा अवे फ्रॉम पॉइंट ए अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A to P, इस डायरेक्शन में। ठीक है? इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब हम A3 को लेकर बना सकते हैं। A3 मेथड वही रहेगा जो A2 को मान के बनाए थे। A3 को बनाने का सिमिलर प्रोसीजर है। ठीक है?
इसको अपने से आप सॉल्व कीजिए। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, रेक्टिफाई कर देंगे उसको हम, ठीक है। अब हम A4 को A मान से सॉल्व करते हैं। A4 को मैंने A1 को मान के A2 को मान के बना दिया ना, A3 को मान के नहीं बना रहे, अपने स्ट्राइक कीजिए, वही आंसर आना चाहिए, 15/29 आना चाहिए, ठीक है। अब A4 को A मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, A4 का कोऑर्डिनेट 3,4 है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, A4 देखिए रॉड का मटेरियल पॉइंट नहीं है, इट्स एन एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ द रॉड, समझे। A4 जो है इट्स एन एक्सटेंशन पॉइंट, मैंने रॉड फ्रेम का इमेजिनरी लोकेशन है। A4 is imaginary location of the rod. A4 is an imaginary location of the rod. हाँ, A4 जो है रॉड का एक इमेजिनरी लोकेशन है। अब A4 को A मान के हमको इसका फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इसको न्यूटन लॉ लगाना है स्लाइडर को रॉड के फ्रेम में। फिर से इसका हम लोग फ्री बॉडी बनाएंगे रिंग का रॉड के फ्रेम में, एज सीन फ्रॉम पॉइंट A4, ठीक है। तो FBD बनाते हैं। देखिए, तो पहले तो वेट दिखा देंगे एज यूजुअल, जिससे दिखाए थे 4G, 40 न्यूटन का वेट हो गया। एक और रियल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन N, प्लस इस पर एक फ्रिक्शन होगा स्लिपिंग का अपोजिट, काइनेटिक फ्रिक्शन जो रॉड लगाएगा रिंग पर स्लिपिंग का अपोजिट। ये तीन रियल फोर्स दिखा दिए। अब हम लोग 1 बाय 1 करके 4 सूडो फोर्स इवेल्युएट करके डालेंगे उसमें। तो फर्स्ट सूडो फोर्स मेरा कौन सा है, FPS1 है, जिसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में कैसे, -MA के बदले क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, और I के बदले G लिखेंगे। देखिए, ये देखिए -MA A4G, समझ गए। A4G क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ A4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। M मास है, 4 kg गिवन है। अब देखिए, सबसे पहले हमको A4G इवेल्युएट करना है। वी हैव टू फर्स्ट इवेल्युएट A4G का इवेल्युएशन पहले करना है हमको। अब देखिए, एक बार जान लीजिए, बहुत रॉन्ग नोशन है लोगों की A4 का एक्सेलरेशन 0 होगा ग्राउंड में, नहीं, ग्राउंड का लोकेशन नहीं है, रॉड का लोकेशन है। A4 जो है रॉड फ्रेम से रिजिडली कनेक्टेड है, वो रॉड से इट्स रिजिडली कनेक्टेड टू द रॉड। जब रॉड जब घूमेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, A4 को भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा, तभी रॉड का रियल इमेजिनरी लोकेशन है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले। उन्हें रॉन्ग नोशन है कि A4G 0 होगा, क्योंकि A4 जो है रॉड का मटेरियल पॉइंट नहीं होकर यहाँ पर लाई करता है, डजंट ओवरलैप विद एनी ऑफ द मटेरियल पॉइंट ऑफ द रॉड। तो इसमें है कि जब रॉड घूमेगा तो A4 चूंकि रॉड से रिजिडली कनेक्टेड है, जब रॉड घूमेगा तो A4 को भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A4 जो एक सर्कुलर मोशन अंडरगो करेगा, जिसका सेंटर ऊपर होगा और उसका रेडियस होगा O से A4 तक, ये रेडियस हो जाएगा। देखिए, इसको L से डिनोट करते हैं, समझ गए। L हो जाएगा आपका 3√3² + 4² 5 मीटर हो जाएगा। सो ये बात क्लियर रखिएगा, मैंने इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए। A4 का जो एक्सेलरेशन होगा मैंने ग्राउंड में नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि A4 ग्राउंड का लोकेशन नहीं होकर रॉड का लोकेशन है। रॉड रोटेट करेगा तो A4 को भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा, कि A4 रॉड से रिजिडली कनेक्टेड है। A4 का रॉड के हर लोकेशन से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जब रॉड रोटेट करेगा तो A4 को भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। समझ गया ना क्या बोले। क्योंकि देखिए, जैसे हम कहना चाह रहे हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर, हाँ, इस पॉइंट को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए, वेरीफाई ऐसे करते हैं। देखिए, डायग्राम को फिर से हम बनाते हैं। ये रॉड हो गया मेरा, ये A4 हो गया। हाँ, फॉर एग्जांपल A2 देखिए, ये A2 रॉड का मटेरियल पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट है। अब ये देखिए, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, देखिए, क्योंकि ये रिजिडली कनेक्टेड है रॉड से। अब देखिए, ये मेरा पॉइंट 2 हो गया, जो A1 हो गया। रॉड घूम रहा है ऐसे करके, मान लीजिए रॉड टाइम टी पे ऐसे है, dt सेकंड्स पर रॉड ऐसे हो जाएगा, A2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, ये A2 टाइम टी पर था, ये A2 dt सेकंड्स लेटर हो गया। अब अगर A4 वहीं रहेगा तो ये डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बदलना नहीं है, क्योंकि A4 को रॉड के हर लोकेशन डिस्टेंस को कांस्टेंट रहना है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जब A2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो A4 भी करस्पॉन्डिंगली यहाँ आ जाएगा। देखिए, क्योंकि A4 का फिक्स रहता वहीं पर, तो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं रहता, बट वो हो नहीं सकता है, उसको सेम रहना है। सेम रखने के लिए A4 को कुछ इधर जाना पड़ेगा। और कहने मतलब है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A4 रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रहा है।
इवन दो मैंने इसलिए डाउट मैंने नहीं रही, क्लियर रही, एक्सटेंशन पॉइंट का मीनिंग हम क्लियर कर रहे हैं आप लोग को, समझ गए ना। तो अब हमको A4G चाहिए। अब देखिए एक बार जान लीजिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A4 का जो पाथ होगा वो सर्कल होगा, जिसका सेंटर O पर होगा, रेडियस L होगा, ठीक है। तो A4 जब सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो उसका एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट होगा, एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स पॉइंट O, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू दिस लाइन OA4 इधर, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ बीटा। सो हम लोग को A4 निकालना होगा। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए इसको, ये A4 हो गया, देखिए ये L हो गया, ये थीटा हो गया, A4 का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, L cos थीटा 3 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए L cos थीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, L sin थीटा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो A4 का एक्सप्रेशन का दो कंपोनेंट होगा, वो उसका ये दिस डायरेक्शन ओमेगा स्क्वायर L इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ A4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक इधर कंपोनेंट होगा L बीटा, वो राइट एंगल टू दिस OA4 होगा, देखिए ऐसे। अच्छा इसको एक्सटेंड कीजिएगा, देखिए तो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए A4G जो होगा वो होगा इन दोनों का वेक्टर सम। अब इन दोनों को हम लोग आईजे फॉर्म में लिख के जोड़ देंगे तो A4G हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको सेंट्रीपिटल कंपोनेंट लिखेंगे इधर, ओमेगा स्क्वायर L cos थीटा माइनस आई हैट, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं आईजे में, प्लस ओमेगा स्क्वायर L sin थीटा माइनस जे हैट, ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सेशन हो गया A4 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आईजे रोटेशन, प्लस टेंजेंशियल एक्सेशन L बीटा, वो जे से थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो लिखेंगे क्या चीज, प्लस L बीटा cos थीटा जे हैट प्लस L बीटा sin थीटा इंटू माइनस आई हैट, माइनस का कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है ना साइन कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए L cos थीटा मेरा कितना है, 3 है, देखिए ये 3 हो जाएगा, ओमेगा कितना है 2, तो ओमेगा स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या होगा, माइनस 12 आई हैट आ गया ये टर्म, प्लस ओमेगा स्क्वायर L sin थीटा माइनस जे, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, L sin थीटा 4 है, ओमेगा हो गया मेरा 2, तो ओमेगा स्क्वायर 4, L sin थीटा भी 4, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 16 जे हैट हो गया, ठीक है, माइनस 16 जे हैट, प्लस बीटा इंटू L cos थीटा, बीटा कितना है 3, L cos थीटा 3 है, बीटा 3 है, L cos थीटा भी 3 है, तो 9 हो जाएगा, 9 जे हैट, L बीटा sin थीटा, बीटा इंटू L sin थीटा, बीटा कितना है 3, L sin थीटा कितना है 4, 3 इंटू 4 क्या होगा 12, माइनस 12 आई हैट हो जाएगा, माइनस माइनस 12 तो लिखेंगे तो कितना होगा माइनस 24 आई हैट हो जाएगा, माइनस 16 जे प्लस 9 जे कितना हो जाएगा, 16 से 9 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 7 जे होगा ना, बोलिए। ये देखिए यही जाके एक्सेलरेशन ऑफ A4 हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आई होप ये क्लियर है आपको एकदम पूरा, समझ गया ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, तो फिर पूरा गड़बड़ा जाएगा। ओमेगा स्क्वायर cos थीटा माइनस आई हैट हो गया, ओमेगा 2 है तो 4 स्क्वायर इंटू 3, 4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ओमेगा 2 है सॉरी, तो 4 इंटू 3 तो माइनस 12, ऑल राइट, ओमेगा 4 इंटू 4 तो माइनस 16, ठीक है। अच्छा ये वाला टर्म देखिए, बीटा इंटू L cos थीटा 3 इंटू 3 9 जे, ठीक है, और बीटा इंटू L sin थीटा, बीटा कितना है मेरा 3, L sin थीटा कितना है 4, तो 12 माइनस 12 आई हैट हो गया, ठीक है, तो माइनस 24 आई हैट माइनस 7 जे हैट, ये आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर फोर्स जो लिखाएगा माइनस m 4 टाइम्स दिस A4G, माइनस 24 आई हैट माइनस 7 जे हैट, दिस बिकम्स 96 आई हैट प्लस 28 जे हैट, ठीक है, ये लिखाएगा कितना 96 आई हैट प्लस 28 जे हैट हो गया। इसको दिखा देंगे फ्री बॉडी में, तो 96 न्यूटन राइटवर्ड लगेगा और 28 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, हो गया। फर्स्ट ऑर्डर फोर्स इवैल्यूएशन इज डन, फाइन। अच्छा इसको मिटाते हैं हम, अच्छा अब हम सेकंड सूडो फोर्स निकालेंगे,
FPS2 माइनस एम बीटा क्रॉस क्या RPA, ऐसा लिखेंगे। एम कितना है 4 kg है, वेक्टर बीटा कितना है बता चुके हैं 3k है, पहले लिख चुके थे 3k है। RPA कहाँ से कहाँ होगा, A2 से रिंग तक, नहीं सॉरी A4 से यहाँ तक, A4 से रिंग तक। RPA वेक्टर होगा A4 से लेकर रिंग तक। अब सवाल है RPA कैसे निकाला जाए, तो ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अच्छा यहाँ मिटा देते हैं, तो देखिए RPA होगा यहाँ से A4 से लेके रॉड तक। तो देखिए इसको यहाँ डायग्राम बनाते हैं। A4 हो गया, देखिए वेक्टर L हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये स्लाइडर हो गया, ये दूरी कितना हो गया 1 मीटर हो गया, देखिए 1 मीटर दूरी है। ये मेरा हो जाएगा RPA4 होगा, ये देखिए ये RPA4 है, यहाँ पर 4 लिखा नहीं लिखे थे, RPA4 देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब इस वेक्टर को क्या लिखेंगे 3i प्लस 4j, इसका कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, तो वेक्टर है 3i प्लस 4j, 3i हैट प्लस 4j हैट प्लस RPA4 इज इक्वल दिस वेक्टर जो कितना है 8i हैट है, तो RPA4 कितना हो जाएगा 8i हैट, तो 5i हैट माइनस 4j हैट। देखिए आ गया RPA4 आ गया, इसको डाल देंगे वहां पर, देखिए इसको लिखेंगे 5i हैट माइनस क्या 4j हैट हो गया, लिखेंगे 4 × 12 हो गया, k हैट क्रॉस i हैट, k क्रॉस i क्या होता है माइनस j होता है, k क्रॉस i j होता है, तो ये हो जाएगा इसको लिखेंगे, हम लिख दें फिर से एक बार, हाँ कितना लिखा है ये बताइए, 3 × 5 15, 15 × 4 60 माइनस 60 j हैट, k हैट प्लस i हैट j हैट, और 2 माइनस मिलकर प्लस, 4 × 4 16 48 इंटू k हैट क्रॉस j हैट जो कि माइनस i हैट है। देखिए यही जाके इसका सेकंड सूडो फोर्स हो गया, इसका x कंपोनेंट 48 इंटू माइनस i हैट, यानी 48 इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है और ये माइनस 60 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 60 दिखा दिए। देखिए तो सेकंड सूडो फोर्स भी इवैल्यूएट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, थर्ड सूडो फोर्स निकालेंगे, कॉर्नलेस फोर्स, वो तो वही रहेगा जो A1 और A2 को मान के बनाए थे, है कि नहीं बोलिए। इसको फिर हम वही रहेगा, नीचे को मिटा चुके हैं, इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस 2m ओमेगा क्रॉस VPR, R फॉर रॉड हो गया, तो माइनस 2m हो गया, मास 4 हो गया, ओमेगा वेक्टर कितना है मेरा, ओमेगा 2k हैट है। देखिए VPR क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू रॉड, जो कि कितना है 6i हैट है, तो 6i हैट हो गया। देखिए 12 24 96 j हैट हो गया, तो 96 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा देंगे, ये भी हो गया। देखिए हो गया ना। अब बस बचता है हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इवैल्यूएट करना, यहां से लेके यहां तक, m ओमेगा स्क्वायर r इंटू ई, ये हो जाएगा। अच्छा ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स सूडो फोर्स में लिख देते हैं FPS4 m ओमेगा स्क्वायर r इंटू ई हैट। अच्छा इसका कैसे आएगा अभी हम एक्सप्लेन कर दिए थे यहाँ पर, अभी याद होगा थोड़ी देर पहले, टेकअप करने के पहले। तो A2 निकालने को, A2 से सॉल्व करने के बाद हम बता दिए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का निकालने का रूल क्या फॉलो करेंगे, वर्किंग रूल क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं। देखिए ये आपका रॉड हो गया, ये स्लाइडर हो गया, देखिए ये A4 हो गया, देखिए दिस A4, यही आपका डिस्टेंस r हो गया, और E यूनिट वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, r e हैट इज जस्ट दिस वेक्टर, इट इज जस्ट दिस वेक्टर r e हैट जो है ये r टाइम्स e हैट, इट इज जस्ट द वेक्टर दिस फ्रॉम हियर टू हियर, RPA4 फ्रॉम A4 टू द रिंग, ओके। अब ये वेक्टर वही निकाल चुके हैं अभी हम लोग, दिस प्लस दिस बराबर दिस, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये है 3i प्लस 4j है, प्लस वेक्टर RE हो गया, इज इक्वल टू दिस वेक्टर जो कि 8i हैट है, 8i हैट है ना वो, हाँ 8i हैट है, तो वेक्टर RE हैट होगा 5i हैट माइनस क्या 4j हैट हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, m कितना है 4 है,
ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा मेरा 2 है तो ओमेगा स्क्वायर 4 होगा। r इंटू ई क्या होगा 5i हैट माइनस कितना 4j हैट हो गया। तो 4 4 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80i हैट हो गया। 16 इंटू 4 होगा कितना होगा माइनस 64j हैट होगा। ये देखिए ये आपको फोर्स सूडो फोर्स भी आ चुका है, ठीक है ना। इसको दिखा देंगे 80i हैट 80 हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और i हैट j हैट होगा 64 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए सारा फ्री बॉडी इसका कंस्ट्रक्ट हो गया रिंग का रॉड के फ्रेम में। अब क्या करेंगे अगेन यूजुअल क्या करेंगे रिंग को न्यूटन से लगाएंगे रॉड के फ्रेम में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। उससे एफ के और एन हमको आ जाएगा डिवाइड करेंगे म्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ इसमें, है ना। तो इसको लगाते हैं इस डायरेक्शन में न्यूटन का राइटवर्ड डायरेक्शन में रॉड के फ्रेम में। तो क्या लिखेंगे 96 प्लस 80 ये एफ डैश हो गया माइनस एफ के माइनस 48 ये हो गया इज इक्वल टू और ये सब राइट एंगल कंपोनेंट फोर्स का कोई जे कंपोनेंट का कोई इधर कंपोनेंट तो होगा नहीं, राइट एंगल जीरो हो जाएगा। मास कितना है 4 kg। APRX मीनिंग एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड इन एक्स डायरेक्शन जो कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड का राइटवर्ड है। 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। एफ के कितना हो जाएगा एफ के हो जाएगा 80 और 96 156 माइनस कितना 50 48 और 8 तो कितना हो जाएगा 56 176 सॉरी 176 80 और 96 176 माइनस 56 तो 120 न्यूटन आ गया। देखिए एफ की वैल्यू आ गया 120 न्यूटन वही जो आया था पहले से। अच्छा हम नॉर्मल फोर्स निकालना है एन तो रिंग को न्यूटन से लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे एन माइनस कितना एन प्लस व्हाट एन प्लस 28 माइनस इस डायरेक्शन में लगा रहे थे एफ डैश हो गया एफ डबल डैश होगा तीनों का सम एक चारों का सम तो 64 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 96 हो गया एन टाइम्स APRY मीनिंग व्हाट वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू रॉड जो कि जीरो है। एक रॉड के फ्रेम में स्लाइडर का एक्सेलरेशन खाली एक्स के लॉन्ग है ये टर्म मेरा वैनिश कर गया तो राइट साइड जीरो हो गया। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 60 64 124 और 96 कितना हो जाएगा 124 और 96 हो जाएगा कितना 124 220 से 28 घटाइए तो कितना हो जाएगा नहीं बताइए फिर से देखते हैं रुकिए 164 और 96 तो कितना हो जाएगा 120 हो गया आपका 120 96 216 और 64 ये हो गया इतना 828 हाँ 280 तो 280 माइनस 28 280 माइनस 20 नहीं एक रुपये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए जरा हमको ये पिक्चर का कैलकुलेशन 100 हो गया 60 90 कितना हो गया 150 60 और 90 कितना हो गया 150 और 10 160 260 तो 260 माइनस 28 तो 260 माइनस 28 यानी 232 न्यूटन हो गया। देखिए आ गया नॉर्मल फोर्स भी आ गया ना। तो मेरा म्यू के क्या हो जाएगा म्यू के एज यूजुअल हो जाएगा एफ के बाई क्या एफ के बाई एन हो जाएगा। एफ के कितना आया था हम लोग का अभी एफ के कितना आया था जी हाँ 120 आया था बाई कितना 232 तो वही आ गया 15 बाई 29 इज द रिक्वायर्ड क्या आंसर। समझ गए। यहाँ जाके देखिए इस मेथड को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं कैसे रोटेटिंग फ्रेम में नॉन इनर्शियल फ्रेम में फ्री बॉडी सेटअप करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ये पूरा आपको हम बता दिए। देखिए ये 13 वीडियो था इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए था। बस A3 पे मान के नहीं बनाया उसको हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए अपने से बनाइए। इनको इसके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए हम रेक्टिफाई कर देंगे उसको, ठीक है ना। इसको ठीक से हम लोग ठीक से स्टडी कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन जानना होगा थोड़ा सिलेबस के बाहर जरूर है। हालांकि JEE 2016 के JEE एडवांस में इसको क्वेश्चन पूछ दिया था मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा लेकिन फिर भी आ गया था इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा तो जानना तो पड़ेगा ना। देखिए अगर एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सिलेबस के बाहर जाना पड़े कोई हरजान नो हम समझे ना। अक्सर ये सही बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है इसको आधा जानना बहुत खराब होगा या तो पूरा जानिए लेकिन आधा जाना तो कभी भी ठीक नहीं होगा मैंने
तो इसलिए इसको जानना जरूर चाहिए, इसको तो ठीक से गो थ्रू कीजिए, डाउट कोई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जाके इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, फाइन, ऑलराइट।